11. So firstly we discuss its formulas, what we are using. So first is what is this? Sphere. All sides are equal, that is this is sphere. Clear? So its area is, it has sides. All sides are equal. Let its side is be A. So its area is side square, that is A square. Clear? Its area is A square. Side into side, that is A square. And its perimeter means sum of all sides. All sides are equal and we adding A. 4 sides are there, that is 4 into side, that is 4A. Clear? So perimeter of sphere is 4 into side, 4A. If its side is A. Clear? So now next is, this is rectangle because its opposite sides are equal. All sides are not equal, its opposite sides are equal, so it is rectangle. It has length and breadth. Opposite sides are equal. This is length, this is also length. This breadth, this is also breadth. So its area is length into breadth. Clear? And its perimeter is 2 multiply length plus breadth. Clear? Then we are adding length plus breadth plus length plus breadth. So 2 times length, 2 times breadth. तो 2 कॉमन निकाला तो ये बन गया 2 multiply length plus breadth. Clear? Next is, if you have a triangle. You have this triangle and it has a perpendicular. So this is triangle. Triangle में अगर perpendicular आता है या you have a right angle triangle. ठीक है? So its area is half into base into height. Clear? Its area is half into base. अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ABC is a triangle. AD is perpendicular. AB 90 का एंगल आ रहा है, perpendicular है. AD is height and BC is base. और अगर ये right angle triangle आ रहा है PQR, so इसमें base QR perpendicular means height is PQ. Means जो दो sides 90 का एंगल बनाती हैं, they are base and height. Clear? Area of triangle is half into base into height. And same if you have a parallelogram. और अगर इसकी perimeter की बात करते हैं, so perimeter is कोई भी फिगर है, क्लोज फिगर है, its perimeter is sum of all sides. तो जो भी हमें sides दी होंगी, if this is equilateral triangle means all sides are equal. So क्या बन जाएगा? 3 into sides. If it is equilateral triangle, all sides are equal. Otherwise, it has sides A, B, C. So means क्या आता है? Sum of all sides. कोई भी फिगर है अगर उसका हम पैरामीटर निकालते हैं so क्या होता है sum of all sides. Clear? So next is parallelogram. Done this? Parallelogram is opposite sides are parallel and equal. Parallelogram is opposite sides are equal and parallel. ठीक है? Rectangle is also a parallelogram because its opposite sides are equal and parallel. But its each angle is 90. इसका each angle 90 होता है और इसका each angle 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Clear? So अगर होता तो वो rectangle ही बन जाएगी. So its area is half into base into height. इसमें आपको perpendicular होगा. Clear? So that is A, B, C, D. This is parallelogram. So its area is half into base. half नहीं होगा, half अगर होता है तो वो triangle होता है. Its area is base into height. Clear? If we observe this figure parallelogram, so its base is AB and its height DE is perpendicular. DE is its height. Clear? Base into height, that is the area of parallelogram.
और अगर रोम्बस भी आता है, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। सो रोम्बस का एरिया भी अगर उसमें बेस और हाइट आपको दे दिया है, सो दैट इज बेस इनटू हाइट। और रोम्बस का एरिया एक और चीज होती है, रोम्बस में अगर आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, सो डायगोनल अगर दिए हुए हैं तो उसका एरिया क्या बन जाता है हमारा रोम्बस का, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? Rhombus is also a parallelogram, but parallelogram opposite sides are equal and rhombus has all sides are equal. Clear? Rhombus में सभी sides equal होती हैं और parallelogram में opposite sides equal होती हैं. So if in parallelogram you have given base and height, तब तो वही बनेगा base into height. And if you have given diagonals, so diagonals अगर दिए हैं, diagonal क्या होता है? Opposite verses को join करते हैं, जो लाइन सेगमेंट आती है, when we joining the opposite verses, that is a diagonal. So its area is half into first diagonal into second diagonal. ठीक है, D1 D2 means क्या है? फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल। क्लियर? और अगर हम पैरीमीटर की बात करते हैं, सो पैरीमीटर तो सिंपल वही सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल साइड्स, सो वैसे ही जैसे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, सेम ऐसे ही ए बी और सी डी सेम होंगे, बी सी और ए डी सेम होगा, तो 2 टाइम्स ऑपोजिट साइड्स आ जाएंगे। क्लियर? ऐड करके सेम रोम्बस, रोम्बस में भी अगर हम इसका एरिया पैरीमीटर की बात करते हैं तो इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका पैरीमीटर जैसे स्क्वायर का होता है सम ऑफ 4 इंटू साइड, तो इसमें भी सभी साइड्स इक्वल होती है, तो वही बन जाता है 4 इंटू साइड, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? रोम्बस और स्क्वायर आर सेम थिंग। क्लियर? रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी, बट स्क्वायर हैज ईच एंगल 90 और रोम्बस का नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास रह गया स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम विच इट इज आल्सो एक क्वाड्रिलेटरल, मींस 4 साइडेड पॉलीगन होता है, बट its one pair of opposite sides are parallel and one is non-parallel, like A, B, C, D. This is trapezium. Clear? In this AB parallel to CD, AB CD के क्या होता है? पैरेलल, वन पेयर पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू CD, और वन जो पेयर है नॉन पैरेलल होता है। इसको कहीं ना कहीं हम प्रोड्यूस करेंगे, मींस एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके जो है वो मीट कर जाएगा। ये साइड्स को आप प्रोड्यूस करो तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगे। सो इट्स वन साइड ऑफ वन ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड वन इज नॉन पैरेलल। अब इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? इसमें आपको क्या दिया होगा? हाइट दी होगी, मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उनके बिटवीन का डिस्टेंस, सो दैट इज, उसको हम h मानते हैं, इसको DE। सो इट्स फार्मूला इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। क्लियर? हाइट मींस h, मींस यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है हमारी? AB और CD है, और हाइट क्या हमारी? DE। क्लियर? कई बार आपको बोला था कि पैरेलल साइड्स आर दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस, तो डिस्टेंस बिटवीन देम दैट मींस हाइट, कि ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, मींस जैसे हम रूम की बात करें, बेस एंड टॉप में जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज द हाइट। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक फार्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसके बाद इसमें क्या आता है? सर्कल आता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल होता है क्या? राउंड शेप मींस, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की क्या है? कलेक्शन है, विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जिनका एक फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर। इक्विडिस्टेंस मींस रेडियस,
कि एक फिक्स पॉइंट से हम अगर पॉइंट्स लगाते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो उनको ज्वाइन करें तो क्या होगी हमारी फिगर? सर्कल. So this equidistance is called radius and that fixed point is called center. Clear? So this is the circle. अब सर्कल में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं हमारी? रेडियस. सर्कल में क्या होता है? रेडियस, जिसको हम एरिया या पैरामीटर निकालने के लिए यूज करते हैं. ठीक है? So this is circle. Circle. This fixed point is called center and this fixed distance is called radius. ठीक है? और रेडियस का डबल क्या होता है हमारा? डायमीटर. So this AB is diameter. ये पूरा AB हमारा क्या है? डायमीटर. Clear? AB is the diameter and OA is the radius. OA, OB, these are the radius. अब इसका एरिया क्या होता है? That is pi r square. Area is pi r square. Pi की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14. If you have given that use pi is this, तो आपने वही वैल्यू लेनी है. 22/7 बोलना है तो आपने 22/7 ही लेना है. 3.14 का है तो आपने 3.14 लेना है. क्लियर? और इसी तरह इसका पैरीमीटर. सर्कल का पैरीमीटर मीन्स बाउंड्री. सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं. पैरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं सर्कल के. सर्कमफ्रेंस, फेंस मीन्स बाउंड्री. पैरीमीटर, सो इट्स बाउंड्री इज 2 pi r. क्लियर? पाई की वैल्यू हमें पता है, आर भी पता है, 2 pi r. जैसे हमारे पास बैंगल हमने डाली हो, बैंगल की जो बाउंड्रीज को हम अगर मेटल की बैंगल है इसको तोड़ दें तो वो वायर आ जाएगी हमारे पास, तो उसकी क्या लेंथ होगी? दैट इज 2 pi r. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक फार्मूला ऑफ दिस टॉपिक इन 2D शेप्स. जितने भी हमने फार्मूले किए वो क्या है? 2D शेप्स में है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रैपेजियम एंड सर्कल्स. क्लियर? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में क्या आएंगे आपके? 3D शेप्स, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे.